بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، حکومتی وفود کی رات گئے یا جانیہ رابطے اور جوڑ توڑ سب ناکام ہو گئے اور آئینی ترامیم معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ آئینی ترامیم آنے میں ہفتہ یا 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئے اور پارلیمنٹ سے ترمیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی نہیں، ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم آنے میں ہفتہ یا 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ترامیم منظور ہو جائیں گی، مجھے اس میں کوئی بڑا رخنہ نظر نہیں آتا، اور اگر ترامیم نہیں بھی آئیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع بھی ہوا اور بنا کسی انجام کو ختم بھی ہو گیا۔ نمبر گیم کیوں پورے نہ ہو سکے؟ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس متعدد بار ملتوی رہا، کسی نے لیا یو ٹرن؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئینی ترامیم کا معاملہ، نمبر گیم کا کھیل، حکومت کو سبکی کا سامنا۔ خواجہ آصف اور مولانا غفور حیدری بھی ناراضگی کا اظہار کر گئے۔ کل ہونے والے اجلاس متعدد بار ملتوی ہوتے رہے۔ اجلاس کا وقت پہلے 11، پھر 4 اور پھر رات 12 بجے تک ملتوی کیا گیا۔ پہلے وفاقی کابینہ اجلاس بنا کسی پیش رفت کے ملتوی کیا گیا۔ آئینی ترمیم کو پہلے کابینہ کی جانب سے منظور کیا جانا تھا، جس کے بعد دونوں ایوانوں میں پیش کیا جاتا، لیکن کابینہ اجلاس ملتوی ہوتے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آئینی ترمیم کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس محض 2 منٹ ہی چلایا گیا، جس کے بعد اسے بھی متعدد بار ملتوی کیا گیا۔ بعد ازاں اجلاس کو ایک بار پھر نئے وقت پر کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح سینٹ اجلاس بھی کئی بار وقت بدلنے کے باوجود رات 12 بجے تک بھی نہ ہو سکا۔ سینٹ سے باہر جاتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ دینے کا شکوہ کر دیا۔ دوسری جانب مولانا غفور حیدری نے متعدد بار ملتوی ہونے والے اجلاسوں کے باعث حکومت کو ہی ہر سطح پر ناکام قرار دے دیا۔ مولانا غفور حیدری نے نمبرز نہ پورے ہونے پر اجلاس مشکل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ سے واپسی تک آئینی ترمیم کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم واپسی پر آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 21 ستمبر کو بیرون ملک روانہ ہوں گے اور سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بیرون ملک دورے کے پہلے حصے میں برطانوی دارالحکومت لندن جائیں گے اور 2 روزہ دورہ لندن مکمل کر کے 23 ستمبر کو نیو یارک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سیشن میں حصہ لیں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس کے سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی متعدد ملاقاتیں بھی ہوں گی، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ اور لندن مکمل کر کے 28 ستمبر کو الصبح وطن واپس پہنچیں گے۔ یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا رحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں نے معترضہ شقیں بل سے نکال کر متفقہ مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے، جہاں ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملاقات میں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور JUI فے کے وفد کے درمیان ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ مجوزہ آئینی مسودے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب اب آئین پاکستان کا حصہ نہیں رہے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا لفظ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے تبدیل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینے کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے اور صدارتی ریفرنس کے سماعت کا اختیار بھی سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 187 کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو بھی حاصل ہوگا۔ آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ مکمل انصاف کے لیے ہر حکم جاری کرنے کے مجاز ہے۔
आर्टिकल 187 के तहत हुक्म दोनों बड़ी अदालतों के दायरे समाअत तक महदूद करने, दूसरी हाई कोर्ट्स में तबादले के लिए मज़कूरा जज की रजामंदी खत्म करने की तजवीज़ है। तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक होने पर आइनी पैकेज ऐवान में आ जाएगा। हाजी आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कानून साजी और आइन की हिफाजत हमारा हक है। आइनी तरह के मामले में कोई सियासत नहीं थी। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम को कालअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त शफकत महमूद, शहाब सरकी, आबिद जुबैरी, इश्तियाक अहमद, मुनीर काकड़ और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार ने सदा की कि मुजव्विज़ा आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान कहे हैं कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे जेल में रखना है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आइनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। आइनी तरमीम कोई नई बात नहीं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। कानून साजी हुकूमत का इख्तियार है और हम ये कानून ला रहे हैं जिसके मुताबिक साल में मुकदमे का फैसला न करने वाले जजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में PTI रहनुमा असद कैसर की तकरीर का जवाब देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा, पार्लियामेंट का इख्तियार है कि आइनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी करे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। काबीना में मामला आता है, इसके बाद काबीना की खुसूसी कमेटी इसको जांचती है। काबीना और खुसूसी कमेटी के बाद पार्लियामेंट में बिल आता है। अभी ये बिल मुसविदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है। हमने इत्तेहादियों से बिल पर मुशावरत की थी। अपोजिशन के काम हुकूमती बिल पर तनकीद के, इसमें चीज़ें निकलवाना है, लेकिन जब हमारा काम पूरा होगा तो ही हम आप तक मुसविदा पहुंचाएंगे। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि आइनी तरमीम क्या है ये ना अपोजिशन को पता है ना इत्तेहादी जमातों को। कहा कि अगर ये तरमीम मुल्की मफाद में की जा रही हैं तो इन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि वो कानून साजी होनी चाहिए जो मुल्क और आवाम के मफाद में हो। उन्होंने कहा कि काबीना अरकान से भी आइनी तरमीम को छुपाया जा रहा है। अगर ये आइनी तरमीम मुल्की मफाद में की जा रही हैं तो इन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। ये आइनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के लिए है या इसको कंट्रोल करने के लिए। हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि अगर हुकूमत मुसविदा शेयर करे तो इस पर हम अपना आउटपुट देंगे। आप ये बताएं कि आपको किसने मजबूर किया है, आपको जल्दी क्या है। JUI के रहनुमा ने कहा कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के मामले की मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत तरमीम का मुसविदा दिखाए और हुकूमत को हमें मनाना होगा कि वजूहात क्या हैं। उनका मजीद कहना है कि अगर आप अदलिया में इस्लाहात लाना चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं। जब मुझे पता ही नहीं है कि मुसविदे में है क्या तो मैं क्या बात करूं। हाफिज हमदुल्ला ने यह भी कहा कि जल्दबाजी, मजबूरी और खुफिया तरीके पर आप ये तरमीम क्यों ला रहे हैं। क्या हम कोई भेड़ बकरी हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले अरकान कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत, शहद, नसीम शाह, शेख वकास अकरम, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली और अहमद झक्कर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम PTI MNAs जुडिशल हिरासत में थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार MNAs की रिहाई के अहकाम जारी किए थे।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के गिरफ्तार MNAs की 30-30 हज़ार रुपए मुचलकों की एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। PTI MNAs पर थाना संगजानी, तरनोल, नून और थाना सुंबुल में दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। तरमीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। यह पैकेज लाने का माहौल है न वक्त। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान ने तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करने की तस्दीक कर दी। वार्निंग देते हुए कहा कि जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाया उनके खिलाफ भी चलाएंगे। ये लोग क्या समझते हैं कि फॉर्म 47 के MNAs हैं, इन्हें जब मर्जी घेर कर जो मर्जी करा लें। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। रहनुमा PTI ने सारा मामला ही फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुखालफत की है। मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे और 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आईनी तरमीम के लिए एक दिन नहीं बल्कि यह महीनों का काम है। तहरीक इंसाफ रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि ये सारा फ्रॉड है। हुकूमत जो तरामीम करने जा रही है वो बड़ी खतरनाक है। गुजरांवाला सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि ये गलत तरामीम करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं अपनी मनमानी वहाँ से करवाएं। उसकी हमने मुखालिफत की। उमर अयूब का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसकी मुखालिफत की है। जब तरामीम होती है तो एक एक शिक पर बहस होती है। PTI रहनुमा ने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे और 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आईनी तरमीम के लिए 1-2 दिन नहीं, ये महीनों का काम है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया है। 30 सितंबर तक इस मुल्क की जमहूरियत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फिकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो, इन्होंने वोट का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी खून मारा गया दिन के उजाले में नहीं मारा गया। शेख रशीद का कहना है कि 30 सितंबर तक इस मुल्क की जमहूरियत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि 30 सितंबर को पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठ है। वक्त हुआ है हमारे साथ रहिए।